So once again, good afternoon students. In the last class, we were discussing about the time division multiplexing, right? And in that class, we have said that there are two types of time division multiplexing. One is synchronous and another is asynchronous, right? जिसमें हमने कहा कि जो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसके अंदर जो टाइम स्लॉट का जो डिवीजन होता है वो सेम रहता है हर एक सिग्नल के लिए, ठीक है ना. एंड देन हम लोगों ने कहा कि time division multiplexing can be implemented for data streams as well as for the different message signal, that is pulse amplitude modulated signal, right? So in the last class we have discussed about the data stream and we have seen how the synchronous time division multiplexing can be implemented on data stream. So today we are going to discuss how the time division multiplexing can be implemented on pulse amplitude modulated signals, right? So let us try to understand how this pulse amplitude modulated signal is used in time division multiplexing. Okay. First of all, let us try to understand what is pulse amplitude modulation. In our earlier classes, when we have studied about the pulse code modulation, where the first process was the sampling, and we have said that in order to convert an analog signal into a discrete signal, for the first step is sampling, right? सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम लोग काम में लेते हैं और जो आउटपुट है आपका सैंपल और होल्ड सर्किट का उसको हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, राइट. सो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज बेसिकली योर सैम्पलिंग टेक्निक. और ये किस तरह से काम करता है उसको मैं पहले समझा चुका हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ. सपोज दिस इज अ मैसेज सिग्नल, राइट. दिस इज साइनोसोडियल इन नेचर एंड इन ऑर्डर टू हैव द पल्स sampling we make use of this pulse signal, a train of pulses we are using, and this is the output of this after when we apply this message signal to this pulse signal, and after the modulation pulse amplitude modulation we have this output signal where you can see that the amplitude of these pulses is nothing but corresponding to this message signal, right. So यहाँ पर एक चीज आप देखें कि जो पल्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर है जहां जहां हमारे पास पल्स सिग्नल अवेलेबल है. इन बिटवीन दीज टू पल्सेस देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, राइट. सो इस चीज को हम आगे काम में लेंगे टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, ठीक है ना. इसको समझने की कोशिश करिए. व्हेन वी हैव अ सिंगल मैसेज सिग्नल, राइट, देन वी आर गेटिंग दीज पल्सेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, राइट. इन बिटवीन दीज टू पल्सेस देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. So this off signal information can be utilized in time division multiplexing for sending the other signal, right. ये हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए ये हमारा है फर्स्ट सिग्नल और ये मान लीजिए हमारी सैंपल्स इससे समय हमारे पास अवेलेबल है. तो इन दो सैंपल्स के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं जा रही है तो हम एक दूसरा मैसेज सिग्नल और यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पर हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसको हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना. अब ये कैसे करेंगे उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल ब्लॉक डायग्राम. ये अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विथ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, राइट. देखिए यहाँ पर जो x1t, x2t अप टू xnt, these are of message signals, right. And here we are using low pass filters, number of low pass filters according to the number of message signal, and the main purpose of this low pass filters is to avoid the aliasing problem, right. इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा. And here we are using a commutator in the transmitter side, and at the receiver side we are also using a decommutator. Actually the commutator and decommutator, these are basically the switches, right, and these two switches are synchronized to each other with some time pulse. okay, ये दोनों ही आपस में synchronize हैं, ठीक है ना. and one important thing is this commutator or this decommutator are rotating in nature, ठीक है ना. और यहाँ पर हमने रिसीविंग साइड में भी लो पास फिल्टर्स लगा रखे हैं so that the problem of merging of signals can be avoided. अब हम इसको वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. देखिए कई बार क्या होता है कि ड्यू टू सम हार्डवेयर कंस्ट्रेंट वी यूजुअली रिक्वायर लो सैम्पलिंग रेट. लो सैम्पलिंग रेट देने का क्या फायदा होता है,
सपोज अगर सैम्पलिंग रेट कम होगी तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स कम होंगे और उनको आपको प्रोसेसिंग करने में कम समय लगेगा, राइट। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैंडविड्थ ऑफ द एनालॉग सिग्नल जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी सैम्पलिंग रेट क्या होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एनालॉग सिग्नल काम में ले रहे हैं, राइट। दीज एनालॉग सिग्नल्स आर यूजुअली नॉट बैंड लिमिटेड, इनकी बैंडविड्थ काफी हाई होती है जो कि इनफाइनाइट के ऊपर अप्रोच करती है। तो इतनी ज्यादा अगर बैंडविड्थ होगी तो ऑब्वियसली आपकी सैम्पलिंग रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है ना, एज पर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को जब मैंने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था तो ऑन दैट टाइम वी हैव assumed that our signal is band limited signal, right? So this is the main reason why we are considering the signal should be band limited, right? So in signal processing, due to the high sampling rate, the digital signal aliasing may occur. इसमें aliasing में होता क्या है बेसिकली कि आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो जो प्लेस है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का उसके ऊपर ओवरलैपिंग टाइप हो जाती है, ठीक है ना। तो एक डुप्लीकेसी आप इसे कह सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन नॉट डिसाइड which one is higher frequency component or which one is lower frequency component, right? So in order to reduce this aliasing problem, we make use of anti-aliasing filters, and these aliasing filters are nothing but your low pass filters, right? So in analog signals need to be band limited, right? अगर आपकी frequency range limited होगी तो ही हम sampling rate को define कर पाएंगे, right? So we need to do pre-filtering. Pre-filtering का मतलब है कि आपको पहले से ही सैम्पलिंग के पहले ही आपको फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी बैंडविड्थ जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो हियर एट द बिगिनिंग द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लो पास फिल्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेटा इनपुट। जितने नंबर इनपुट आप ले रहे हैं, मैसेज सिग्नल आप ले रहे हैं, उतने ही आप लो पास फिल्टर काम में लेंगे, राइट। एंड दीज लो पास फिल्टर्स आर बेसिकली एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स दैट एलिमिनेट द अलाइजिंग ऑफ योर डेटा इनपुट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी डुप्लीकेसी वहां पर हो रही है, जो ओवरलैपिंग हो रही है, उसको हटाने के लिए हम लोग ये एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये मैसेज सिग्नल और ये एंटी अलाइजिंग लो पास फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए अभी हमारा जो कम्यूटेटर है वो इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, इसका मतलब x1 t की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी, ठीक है ना। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में ये x यहाँ पे आ जाएगा, उस समय x2 की इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये xn की जाएगी, इस तरह से ये रोटेट होता रहता है, ठीक है ना। और इसके साथ में कम्यूटेटर के साथ में आपका जो ये डी कम्यूटेटर है ये सिंक्रोनाइज है सेम टाइम पल्स के साथ में, ठीक है ना। अब अपन आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर इज देन फेड टू योर कम्यूटेटर, ये हमको बता दिया, ठीक है ना। एज पर द रोटेशन ऑफ द कम्यूटेटर द सैंपल्स ऑफ डेटा इनपुट्स आर कलेक्टेड बाय इट। जैसे जैसे वो रोटेट करेगा तो आपके सैंपल्स डेटा वहां पर कलेक्ट होते रहेंगे, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द रोटेशन दीज डेटा इनपुट्स आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लेक्स्ड वो ट्रांसमिट होंगे एक कॉमन चैनल के ऊपर, ठीक है ना। नाउ एट द रिसीविंग एंड ए डी कम्यूटेटर, ये भी एक तरह का स्विच है जो भी रोटेट करता है, इज प्लेस्ड दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द कम्यूटेटर एट द ट्रांसमिटिंग एंड। एक्चुअली हम लोग ट्रांसमिटिंग एंड पे एक कम्यूटेटर काम में ले रहे हैं और रिसीविंग एंड पे एक डी कम्यूटेटर काम में ले रहे हैं। दीज बोथ कम्यूटेटर एज वेल एज डी कम्यूटेटर आर बेसिकली योर रोटेटिंग स्विचेस, राइट। दिस डी कम्यूटेटर सेपरेट्स द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सिग्नल एट द रिसीविंग एंड, ठीक है ना। जो वहां पर कम्यूटेशन हुआ था वो वहां पर डी कम्यूटेट होकर के ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर आर सिंक्रोनाइज एंड रोटेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। ए लो पास फिल्टर देन अलाउ द रिकवरी ऑफ ईच मैसेज सिग्नल इट्स सैंपल वैल्यूज। ये जो हमने रिसीविंग एंड पे और फिल्टर्स लगा रखे हैं ये बेसिकली आपके स्मूथिंग के लिए बेसिकली काम आते हैं। ये वापस हम डायग्राम के ऊपर आए हैं तो देखिए मैंने आपको बताया, मान लीजिए जब ये x1 t के ऊपर है तो ये ब्लू कलर का एक डेटा स्ट्रीम हमने इसको एक ही माना है। अभी यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जब ये 2 पे है तो आपका ये रेड कलर का सिग्नल आ रहा है और जब ये लास्ट n पे आ गया तो ये ब्लू कलर का सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कम्यूटेटर के बाद क्या हुआ, ये देखो सबसे पहले ये वाला सिग्नल आया ब्लू, फिर ये आपका ये रेड आया, देन अगेन ब्लू आया, ठीक है ना। और ये कॉमन चैनल के ऊपर ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर जब वापस डी कपलिंग होती है तो ये 3 सिग्नल आपके पास वापस आ गए, ठीक है ना। सो इन दिस वे हाउ दी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल
is getting time division multiplexed, right? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने लास्ट में यहाँ पर वापस एक डेटा स्ट्रीम दिखाई है जो मैंने आपको कहा था वी कैन यूज डेटा स्ट्रीम। जैसा कि हमने पहले एक सिग्नल को A1, A2, A3 में डिवाइड किया था, वैसे हम काफी सारे इसके स्ट्रीम्स ले सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस हाउ दिस टेक्स प्लेस। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना है सिंक्रोनाइजेशन को, ठीक है ना। ये किस तरह से ये रोटेट हो रहे हैं, सिग्नल का अराइवल हो रहा है और फिर यहाँ पर वापस ये रिट्रीवल हो रहे हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक you have understood the concept of how this pulse amplitude modulation with the help of time division multiplexing takes place.